میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا, کچھ اور نہیں. سیاسی انجینئرنگ کے لیے پیپلز پارٹی کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. ہر بار پنڈی میں پیپلز پارٹی کے لیے کربلا برپا کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں دھواں دھار پریس کانفرنس. اپنے حق کے لیے عدالت اور عوام دونوں میں جا رہے ہیں. حکومت نے کالعدم تنظیموں کی مدد سے الیکشن جیتا. ان کے ہمدرد آج بھی کابینہ میں موجود ہیں. پھر نیشنل الیکشن پلان میں ان کے خلاف کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ بلاول بھٹو نے حکومت پر تیر چلا دیے. وزراء سے استعفوں کا مطالبہ بھی کر دیا. ایک افسوسناک اور شرمناک حملہ کیا گیا. سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ آغا صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی پہ صرف الزام پہ آپ اٹھا سکتے, ثبوت تو نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر آغا سراج درانی کی گرفتاری کو سندھ اسمبلی پر شرمناک حملہ قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں کہا آغا سراج کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. ہوتا تو گھر پر چھاپا نہ مارا جاتا. بچوں کو یرغمال بنایا گیا. چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. چیئرمین نیب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. بلاول بھٹو نے نیب کو کالا قانون قرار دیا. بولے اس پر فرشتہ بھی بیٹھ جائے تو سیاسی انتقام ہی لیا جائے گا. پیپلز پارٹی سے اختلافات ہیں لیکن پارٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا. جیالے رہنما اعتزاز احسن نے وضاحت کر دی. کہتے ہیں نواز شریف جب کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو گردن پکڑتے ہیں. بلاول نواز ملاقات کی کبھی مخالفت نہیں کی. ہم نے صرف ان کو گردن سے دبوچا ہوا ہے کہ ہم آپ کو کرپشن نہیں کرنے دیں. تحریک انصاف کے خلاف دونوں بڑی پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی. دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں ان کی سازشیں صرف ایک ہی شخص کے خلاف ہے اور اس کا نام عمران خان. اپوزیشن کو گردن سے دبوچا ہوا ہے, کرپشن نہیں کرنے دیں گے. پی پی اور نون لیگ تحریک انصاف کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھی ہیں. فواد چودھری کی گھن گرج. کہا زرداری اور نواز شریف اپنا آخری الیکشن لڑ چکے. تنخواہ کا معاملہ اپوزیشن اور حکومت شیر و شکر ہو گئے. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ اور مراد میں اضافہ 83,000 سے بڑھ کر 1,92,000 روپے کر دی گئی. بل 24 گھنٹے میں منظور کر لیا گیا. قصر ناز ہوٹل سندھ نہیں وفاق کے ماتحت ہے. گورنر سندھ نے سندھ حکومت پر الزام لگایا. مرتضی وہاب کی تنقید. پی ٹی آئی والے باتیں چھوڑیں, کام کریں. میڈیا سے گفتگو میں اظہار برہمی. تعلیم گاہ بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئی. نوشہرہ میں سرکاری اسکول 14 سال سے بند. رکن صوبائی اسمبلی سومی فلک ناز کا دورہ. اسکول کی حالت زار پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ محمود خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سیالکوٹ میں شہری اور پولیس کی فرض شناسی. شہری نے سڑک سے ملے 5 لاکھ روپے پولیس کے حوالے کر دیے. پولیس نے 10 روز بعد اصل مالک کو تلاش کر کے امانت لوٹا دی. سڑکوں پر بینرز لگائے گئے. سوشل میڈیا پر بھی تشہیر کی گئی. السلام علیکم. شام 6 بجے کے بلیٹن میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں شائستہ اقبال. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نیب کا قانون کالا قانون ہے. نیب پر فرشتہ بھی بٹھا دیں تو سیاسی انتقام ہی ہوگا. نیب میں اصلاحات نہ لانا ہماری کوتاہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ضروری ہے. اسپیکر کی گرفتاری سندھ اسمبلی پر شرمناک حملہ ہے. سندھ اسمبلی میں اسپیکر آغا سراج درانی سے گفتگو کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ گھر پر چھاپا مار کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہمیں فیئر ٹرائل کا حق دیے بغیر سزا سنا دی گئی ہے. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا, کچھ اور نہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی کسی پیپلز پارٹی کا تو عہدہ نہیں. ایک افسوسناک اور شرمناک حملہ کیا گیا. سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ تھا. وہ شرف کا بنایا ادارہ
स्पीकर सिंध असेंबली को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया। ये जो एसेट बियॉन्ड मींस का इल्जाम है किसी पे भी लग सकते हैं। आगा साहब स्पीकर सिंध असेंबली पे ये सिर्फ इल्जाम पे आप उठा सकते हैं, सबूत तो नहीं था। अरेस्ट के बाद घर पे रेड करना कोई सबूत नहीं था, सबूत ढूंढने रेड करवाया, प्लांट करना जैसे आप पहले भी करते थे, इसे आप मैसेज दे रहे हैं। चार दीवारी की पामाल किया गया और तो बच्चों यरगमाल किया गया। चेयरमैन नैब ने आज तक औरतों के खिलाफ तशद्दुद पे कोई एक्शन नहीं लिया। चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे। हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन ले। जब से सियासत में हूँ दहशतगर्दों कलअदम तंजीमों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। अपोजिशन के खिलाफ बोलने वाले वजीर आजम मोदी और कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है, राना मुबशिर साहब हमारे साथ होंगे और एंकर पर्सन सीनियर गरीदा फारूकी भी हमारे साथ ही मौजूद होंगी। आसमा, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो ने नैब के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ से कल मुलाकात हुई है बिलावल की क्या तय पाया होगा? क्या मामलात कुछ सेटल डाउन हुए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर पिछले कुछ अरसे से लेके अब तक कोई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की है। तीन चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है। एक तो जो नैब के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट की है और ये कहा है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, धमकी भी उन्होंने दी है इसके ऊपर भी। दूसरा 18वीं तरमीम जो कि 3 इनके हॉस्पिटल्स को जो वफाक ने ले लिए और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर 3 बड़े हॉस्पिटल जो थे वो वफाक के जेरे इंतजाम किए गए थे हाल ही में, उसके ऊपर भी उन्होंने 18वीं तरमीम को उन्होंने कहा कि ये इसके खिलाफ वर्जी है, जो कि है भी। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, लॉन्ग मार्च तक की भी बात की है। और इसी तरह से तीसरा जो उन्होंने किया वो कलअदम तंजीमों के खिलाफ। तो तीनों बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और उन्होंने 3 वज़रा के हटाए जाने का भी मुतालबा किया है जिनके के कलअदम तंजीमों के साथ तस्वीरें या उनकी फुटेजेस जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। शहरियार आफरीदी साहब को उन्होंने मेंशन किया जिन्होंने हाल ही में कहा था कि हाथ नहीं लगाएंगे, एक वीडियो वायरल हुई थी। असद उमर साहब की फजलुर रहमान खलील के साथ जो तस्वीरें थी उसके ऊपर, और फिर शेख रशीद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके साथ मुबैना तौर पर उनकी तरफ इशारा था कि वो कलअदम तंजीमों के लोगों के साथ बैठते रहे। तो ये मुतालबा उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट किया। जो अहम बात है वो ये है कि कल की मुलाकात के बाद से जाहिर है कि पहले से ही इशारे मिल रहे थे कि PMLN और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं। कल उनको यकीनी तौर पर जो सिग्नल है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ से मिला होगा कि नैब के ऊपर बात करने के लिए। और फिर जिस तरह से स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी हुई थी और इसको तो मेरा ख्याल है सभी लोगों ने कंडेम ऑलमोस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर कि इसकी ये गैर जरूरी था और इसकी जो टाइमिंग थी वो भी बड़ी गैर जरूरी थी। बहरहाल इसके ऊपर भी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं, लेकिन क्या शहबाज शरीफ भी एक पेज पे होंगे इसके हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं जो हमारी इत्तलात हैं और उनके साथ राब्ते भी हैं। इसी तरह से कल नवाज शरीफ साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना से उनकी मुलाकात जल्द हो। तो लगता ऐसे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ये किसी एक अहम नुक्ते पर जरूर इकट्ठे होंगे। और बाय द वे ये अगर लॉन्ग मार्च जिसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने कर रखा है ऑलरेडी इस्लामाबाद के लिए, अगर उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक हो जाती है और नून लीग भी शरीक होते हैं तो ये काफी ज्यादा अहम डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। ये भी याद रहे कि इसमें इसके अलावा भी जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की कॉल भी है अरमान लूदी के ऊपर और इसी तरह से बाकी जो दीगर ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो एक टफ टाइम इस गवर्नमेंट को जरूर मिल सकता है आने वाले दिनों में। जरूर ये अच्छा शगुन नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। लेकिन अपोजिशन अगर कल को जाके एक जगह पे इकट्ठी होती है और कुछ सड़कों के ऊपर मामला देखने को मिलते हैं तो हुकूमत को बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, आसमा शिराजी आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ राना मुबशिर से, लेकिन साथ साथ मुनीज़े जहांगीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े, जो इस वक्त सफ़ बंदी हो
रही है इस पॉइंट पर आके नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब को लेकर और नैब की पूरे जो उसको कहा जा रहा है कि ब्लैक लॉ है। नाउ इस पूरी मूवमेंट को देखते हुए हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बिल्कुल काउंटर स्ट्रैटेजी में एक्सपोज कर रहे हैं इस पूरी मूवमेंट को। जी देखिए, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो तो शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा आपको बेहतर बता सकेगा, मगर जो हमें लग रहा है उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह आपने फवाद चौधरी साहब का भी नाम लिया वज़ीर इत्तलात ने, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हम नैब के कानून के अंदर कोई तरमीम लाएंगे तो उसको और मजीद सख्त बनाने के लिए लाएंगे। वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बयान दे चुके हैं। और फिर हमने देखा था कि लॉ मिनिस्टर फरूख नसीम साहब सेनेट के अंदर भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों से राय ली, सेनेटर से राय ली कि किस किस्म की नैब के अंदर तरमीम आनी चाहिए, और उन्होंने भी एक इंटरेस्ट जो है वो दिखाया, चूंकि उनका ताल्लुक MQM से है, कि जी नैब के कानून के अंदर इस तरीके से तरमीम आनी चाहिए कि ऐसे ना लगे कि किसी की भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस बात के ऊपर उनको सेनेटर्स ने उनको अपनी राय भी दी और वो जो रिकमेंडेशंस भी थी, और उसके बाद ये भी कुछ फैसला हो रहा था कि इस तरह की कोई कमेटी या कोई टास्क फोर्स बनाई जाएगी, बल्कि टास्क फोर्स का उन्होंने कहा था कि टास्क फोर्स बनाएंगे जो नैब के कानून के अंदर तरमीम लाएंगे, मगर वो बात वहीं की वहीं अभी रह गई, उसके अंदर कोई पेशरफ नहीं हुई और फरूख नसीम साहब भी इस मामले के ऊपर खामोश हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि फरूख नसीम साहब जो खुद ये जाती तौर पे समझते हैं कि नैब के लॉ के अंदर तरमीम आनी चाहिए ताकि बेहतरी की तरफ मामला जाएं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो बार बार इनके पे इल्ज़ाम लगता है वो इल्ज़ाम ना लगे और हर किसी को एक ही उसे तोला जाए। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे शकूक व शुबात हैं जो देखने वाले हैं, और उनमें से एक जो बहुत अभाम है नैब के लॉ के अंदर, जिसके पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, वो ये है कि नैब के लॉ के अंदर वादा माफ गवाह बनने की इजाजत है। तो यानी कि अगर मैं और आप इकट्ठे मिलके कोई जुर्म करें तो मुझे अगर वो ले आए और मैं उनका एक प्रूवर बन जाऊं और बता दूं कि आपने क्या क्या किया है, तो मेरी सजा भी माफ हो जाएगी और मैंने जो भी गुनाह किया है वो भी माफ हो जाएगा और आपके ऊपर सारा ओनस आ जाएगा। तो इस किस्म के जो कवानीन है अब वो दुनिया में जाहिर है ऑब्सलीट हो गए हैं, दुनिया में बाकी दुनिया में नजर नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। और जितने भी हमारे वकला बरादरी है वो भी ये समझते हैं कि इस कानून के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। ठीक है मुनीज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गरीदा फारूकी सीनियर एंकर पर्सन वो भी हमारे साथ ही मौजूद है। गरीदा, आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जो नैब के अफसरान जो वहाँ गए, जिन्होंने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनका एहतिसाब होना चाहिए और उन्होंने सड़कों पर निकलने का कहा। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे हम। देखिए शाइस्ता, जो बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके 2-3 मुख्तलिफ पहलू हैं जी। सबसे पहला पहलू तो उनका सियासी है और केसेस से मुतालिक है। जैसा कि आपने भी कहा कि आगा सिराज दुरानी से मुलाकात की, तो जाहिर है जब आगा सिराज दुरानी से मुलाकात करेंगे, वो स्पीकर हैं सिंध असेंबली के और बिलावल उनसे सिंध असेंबली के अंदर ही मुलाकात करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है बिलावल नैब पे ही बरसेंगे, नैब पे ही गरजेंगे, हुकूमत पे ही अपने तंज के और तनकीद के तीर चलाएंगे। उसके अलावा वो किसको हदफ तनकीद बनाएंगे। लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर साहिबा की जो बेल है कराची की बैंकिंग कोर्ट से 15 मार्च को वो खत्म होने जा रही है, उसके बाद बेल एक्सटेंड होती है कि नहीं होती। दूसरी जानिब जो केस लगा हुआ है जिसमें नैब ने दरखास्त कर रखी है कि जी ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये पिंडी मुंतकिल किया जाए, उसमें भी जो जराए बता रहे हैं वो कभी इम्कानात हैं कि ये केस पिंडी मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसलिए बिलावल भुट्टो का जो सियासी गुस्सा है, जो नैब पे गुस्सा है, जो हुकूमत पे गुस्सा है, जो केसेस पर गुस्सा है, वो इनका बिल्कुल बजा है, वो बिल्कुल समझ में आता है और उस पर तनकीद भी की जा सकती है, उससे एग्री भी किया जा सकता है, डिसएग्री भी किया जा सकता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा सख्त था, बहुत क्रिटिकल था और वो इस किस्म का था जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी रगड़ा लगाया, उन्होंने अदलिया पर भी बात की और उन्होंने जो एक गठजोड़ है हुकूमत के साथ और कलदम तंजीमों के साथ उस पर भी बड़ी बेलाग, बड़ी खुल के गुफ्तगू की।
तो जो नेशनल एक्शन प्लान है, जो कलदम तंजीमों के हवाले से अपोजिशन की एप्रीहेंशंस हैं, वो बिल्कुल बजा हैं। उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डिसएग्री कर सकता है। जो बिलावल ने बातें की हैं वो 100% दुरुस्त हैं, उसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत का जवाब क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हुकूमत के सियासी जवाब देगी, हुकूमत उल्टा बिलावल भुट्टो पर तनकीद करेगी, उनके लहजे पे तनकीद करेगी, उनके अंग्रेजी बोलने पे तनकीद करेगी, उनके नाम पे तनकीद करेगी। हुकूमत अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेगी कि देखें जी, हम तो FATF के हवाले से बहुत कुछ काम करने जा रहे हैं, और जितना भी जो पिछला एक जो कहते हैं ना कि एक बखेड़ा डाला हुआ था, वो तो पिछली हुकूमतों ने ही डाला हुआ था। पिछली हुकूमतें ही नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं कर सकी थी। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को सूरत हाल दरपेश है FATF के हवाले से, उसमें तमाम सियासी जमातों का ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। और आप देख रही होंगी कि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान पे, वज़ीर आज़म पे, हुकूमत पे तनकीद की जा रही है कि जो एक नेशनल यूनिटी बनी थी विद अगेंस्ट इंडिया जंग के हवाले से, वो हुकूमत ने ही और वज़ीर आज़म ने ही खत्म कर दी। अब दोबारा से कोशिश होनी चाहिए, और ये हुकूमत को ही करनी चाहिए कि कलदम तंजीमों के खिलाफ अगर वो वाकई संजीदा है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, खास तौर पे पार्लियामान की तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो उनकी इत्तेहादी हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, उनको ऑन बोर्ड लें। क्योंकि एक पार्लियामानी मीटिंग हुई थी, एक पार्लियामानी ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें वज़ीर आज़म तो नहीं आए थे, लेकिन आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी, वज़ीर खारजा ने दी थी। तो एक इस तरह की कोई ब्रीफिंग होनी चाहिए जिसमें अपोजिशन जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, या एक दोबारा से पार्लियामानी ब्रीफिंग हो जाए जिसमें बताया जाए, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हुकूमत अगर वाकई संजीदा है तो बताए कि जी वो क्या इक़दाम करना चाहती है। हमारी जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी कुछ जर्नलिस्ट की, एंकर पर्सन की, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने खुल के बताया था कि जी रियासत का बयानिया और रियासत की सोच और रियासत का रवैया अब तब्दील हो गया है। लेकिन बहुत से सवालात ऐसे थे हमारे जो कि हुकूमत उसका जवाब नहीं दे पाई थी। मिसाल के तौर पे कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करने के लिए आपके पास प्लान क्या है? ये जो कुछ हो रहा है ये वक्ती हो रहा है, ये आई वॉश के तौर पे हो रहा है, या इसकी एक लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी है? तो वो हुकूमत का कहना था कि जी आप फिलहाल वेट एंड सी, इंतजार फरमाएं और देखें। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने कहा है वो इस वक्त पूरा मुल्क सवाल कर रहा है कलदम तंजीमों के हवाले से, और बिलावल तो उससे एक स्टेप आगे चले गए हैं। उन्होंने 3 वुज़रा जिनके नाम उन्होंने तो नहीं लिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरफ वो असद उमर की निशानदही कर रहे थे, दूसरी जानिब वो शहरियार आफरीदी की निशानदही कर रहे थे, और तीसरा नाम वो शेख रशीद का ले रहे थे। तो ये 3 वुज़रा जो है वो उनको हटाने का मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इसको तस्लीम करेगी। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट था बिलावल की स्पीच का, वो रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च, रिगार्डिंग प्रोटेस्ट, रिगार्डिंग सड़कों पे आ जाएंगे, ये कोई पहली दफा बिलावल ने धमकी नहीं दी। इससे पहले भी बिलावल धमकी दे चुके हैं। अंदरूनी सिंध में कोई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले गालिबन वो एक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शायद लाड़काना में या शायद सखर में। उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से कहा था कि